alkene. What are the alkenes, beta? CnH2. Yes, these are the unsaturated hydrocarbons. First of all, unsaturated hydrocarbons. And what would be the general formula for the alkenes? The general formula for the alkenes is Cn and H2n. ठीक है बेटा? And along with this general formula, you must know the hybridization. सबको hybridization पता होगी alkene की. We had done in the chemical bonding portion. Unsaturated hydrocarbon है तो double bond भी होगा. Double bond भी है तो उनका first member क्या होगा? The first member of the alkenes would be, yes, this is the formula of the ethene. And what about the hybridization? sp2. sp2 is the hybridization, and the trigonal planar would be the geometry. 120 degree would be the bond angle. ठीक है, ऑर्बिटल पिक्चर आती है ना सभी को alkenes की? Everybody know the orbital picture of the alkene. If this is a 1 sp2 hybridized carbon atom, so how the 3 orbitals of the sp2 hybridized carbon atoms would look like this trigonal planar. And this is the second one. The second one carbon atom will be showing its all the 3 orbitals like this. And to each carbon atom, we will be having the 1 hydrogen atom. These are the sigma bonds. This is sigma bond, and this is sigma bond. This is sigma bond, and these two are also the sigma bonds. And there would be the 1 unhybridized p orbitals on each carbon atom. This is the 1 unhybridized p orbitals on each carbon atom. These unhybridized p orbitals on each carbon atom will lead to the lateral overlap, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा? साइड वाइज ओवरलैप. और साइड वाइज ओवरलैप होने से क्या बन जाएगा आपका? पाई बॉन्ड. तो अगर एक कार्बन पे कैलकुलेट करोगे तो 1 सिग्मा 2 3 3 सिग्मा 1 2 3 sigma on each carbon atom. So the hybridization is sp2 and the 1 is a pi bond. Everybody knows this, na? Alkenes are the unsaturated hydrocarbon with this. तो अगर ये unsaturated hydrocarbon है तो किस टाइप के reactions देंगे? What type of the reactions would the alkenes give? Alkenes give the addition reactions. ठीक है, जो भी आपका unsaturated hydrocarbon है, that will give us the addition reactions. They will give addition reactions. So before starting with the method of preparation of alkenes, let's consider what type of the geometrical isomerism. पहले isomerism ही बता दें आपको, फिर आते हैं geometrical पे. What type of the isomerisms they exhibit? So first we will study the isomerism exhibited by the alkenes. What type of the isomerism is exhibited by the alkenes? The alkenes exhibit the geometrical isomerism. They will exhibit the geometrical isomerism. Geometrical isomerism को बेटा एक और कैटेगरी में भी आप लिख सकते हो. How you can write it as? You can write it as a cis or the trans isomerism. Cis or the trans isomerism. ठीक है. एंड इसके लिए कुछ मैं कंडीशंस पहले आपको बताती हूँ. देन विल गो टू दिस रिगार्डिंग द कंडीशंस फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. द कंडीशंस फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. The first condition for the geometrical isomerism is the compounds must have a double bond. Must have the double bond. पहले तो आपके कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए. And the second is the 2 groups attached to the 1 carbon atom must be different. 2 groups attached to carbon, sp2 hybridized carbon must be different. Now let us say we are having the C double bond C, and here is AB and the here is CD. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में. What I meant by the second postulate is this कि A और B आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए.
सी और डी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ए और सी मे और मे नॉट बी इक्वल, बी और डी मे और मे नॉट बी इक्वल, ये दोनों कंडीशंस चल जाएंगी। बट दिस इज फॉर द श्योर कि ए बी और सी डी इक्वल नहीं होने चाहिए। तो लेट्स टेक अ टू और द one of the two examples of this category. If we are having a C double bond C, here we are having CH3, here we are having H, here is again having CH3, here is again we are having H. तो इसमें carbon is a sp2 hybridized, sp2 hybridized on the both same side of the carbon atom. If there are the same groups on the same side of the double bond, then this is called as a cis isomer. Then we call it as a cis isomer. And if we are having the diagonally opposite arrangement, CH3 here, CH3 here, H here, H here, diagonally opposite arrangement if we are having, so then it is called as a trans isomers. Okay, cis and the trans, these are the two types of the isomers, and these two isomers are called as a geometrical isomers. ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये हमने कौन सी कैटेगरी ली है? ये हमने वो कैटेगरी ली है जिसमें ए और सी आपस में इक्वल है, बी और डी आपस में इक्वल है, तो उस टाइम ये जो आइसोमर बनेंगे सिस एंड ट्रांस बनेंगे। नाउ आई विल टेल यू द कैटेगरी वेयर वी आर नॉट हैविंग द ए एंड द सी एंड बी एंड डी बोथ ऑफ दीज सेट्स इक्वल। तो हैव यू नोटेड इट डाउन? कैन आई शिफ्ट द स्लाइड? यस मैम। लेट अस सपोज कि आपको कुछ ऐसा आ जाता है, सी डबल बॉन्ड सी, हियर इज अ सी एल, हियर इज अ बी आर, here is a H and here is a F, ठीक है, and C double bond C, here is a some opposite arrangement, here is a Br, here is a Cl, here is a F and here is a H. तो क्या ये ज्योमेट्रिकल की कैटेगरी है? Yes, this is also the category of the geometrical isomerism. First condition is fulfilled, double bond is there and the two groups attached to the one carbon atom are different. तो ये ज्योमेट्रिकल है, पर ये सिस ट्रांस नहीं है। इसे कैसे लिखेंगे? आपको क्या करना होता है कि एक जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके अराउंड, उसके साथ जो भी दो ग्रुप्स लगे हैं उसको आपको प्रायोरिटी देनी है, एंड द प्रायोरिटी यू हैव टू गिव ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर ओनली। ब्रोमीन और क्लोरीन में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? ब्रोमीन का ज्यादा है, तो ब्रोमीन को हायर प्रायोरिटी दोगे और क्लोरीन को लोअर प्रायोरिटी दोगे। अगर फ्लोरीन और हाइड्रोजन में चेक करो तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो यू विल गिव द हायर प्रायोरिटी टू इट, और हाइड्रोजन को आप लोअर प्रायोरिटी दोगे। आफ्टर असाइनिंग द प्रायोरिटी, इफ यू सी ऑन द सेम साइड ऑफ अ डबल बॉन्ड यू आर गेटिंग द सेम टाइप एल, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जेड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ जेड, और इस टाइप को बोलते हैं ई एंड द जेड आइसोमर्स। और ये भी किसकी कैटेगरी है? दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ई एंड द जेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब यहाँ पे देखो, ब्रोमीन इज हैविंग द हायर प्रायोरिटी, सो दिस इज एच, क्लोरीन इज हैविंग द लोअर एटॉमिक नंबर, सो दिस इज लो, फ्लोरीन और हाइड्रोजन में से दिस इज ओके, आई हैव टू शिफ्ट द वन पेयर, नहीं तो फिर वही आइसोमर पे आ जाएंगे। एक को ऐसे ही रखना है एच और एफ, तब डिफरेंट बनेगा ना, नहीं तो पहले वाली कंडीशंस में ही आ जाएंगे। तो दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो। अब डायगोनली सेम है तो दिस इज कॉल्ड एज अ ई। तो दिस इज अ ई एंड जेड फॉर्म। ई और जेड फॉर्म और सिस और ट्रांस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसको आप ट्रांस भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब या आप बोलो कि जो ट्रांस कैटेगरी है उसको हम इस सिस्टम में ई बोलते हैं, जो सिस वाली कैटेगरी है इसे ये वाले सिस्टम में आप जेड बोलते हो, बट बोथ आर द कैटेगरीज ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो दिस इज अ टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म व्हिच इज एग्जिबिटेड बाय द एल्कीन्स, और ये टाइप का जो आइसोमेरिज्म है वो आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर। जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है बेसिकली इसमें टू टाइप्स हैं, द वन इज अ ज्योमेट्रिकल एंड द अदर इज अ ऑप्टिकल। ऑप्टिकल वी विल रीड इन द 12th पोर्शन, जब ऑप्टिकल एक्टिविटी और SN1 SN2 आपका आएगा, और ये जो आपका ज्योमेट्रिकल वन है दैट वी हैव टू स्टडी इन द केस ऑफ द एल्कीन्स ओनली। द टू टाइप्स आर देयर, वन इज द EZ एंड अदर इज द सिस ट्रांस। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस मैम। If we are having this type of the arrangement,
चलो अब मुझे बताओ कि ये डबल बॉन्ड सिस है या ट्रांस है, कैसे आप चेक करते हो? जब ऐसा कोई आपको कंपाउंड एग्जाम में आता है तो जो पोजीशंस पे कोई ग्रुप नहीं लगे हैं, जहां पे कार्बन का कोई एक वैलेंसी पेंडिंग है, वहां पे ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा ना। अब इस कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप है जो ऊपर को लाइन जा रही है, तो दूसरा क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन। इस कार्बन पे ये एक क्लोरीन है और ये नीचे को ये ग्रुप है, इस पे एक आयोडीन है, नीचे ये है, इस पे एक, यहाँ पे ये लाइन है और यहाँ पे फिर हाइड्रोजन होगा, यस और नो? यस मैम। यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन होंगे। तो अब आप बड़े आराम से चेक कर सकते हो सिस एंड ट्रांसफॉर्म। इस वाले में हाइड्रोजन नहीं है तो आपको इजेड से चेक करना पड़ेगा। एक साइड क्लोरीन है और दूसरी साइड कार्बन होगा। अगर मान लो आपके पास जो एक कार्बन पे दो ग्रुप अटैच हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, उनका फर्स्ट एटम सेम एटॉमिक नंबर रखता है, एक पे CH3 है एक पे C2H5 है, तो सेकंड पे चले जाओ, अगर सेकंड सेम है थर्ड पे चले जाओ। दिस वे यू हैव टू कीप ऑन मूविंग टिल यू फाइंड द एटम विद अ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी होगी और यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी होगी। यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी होगी, यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी होगी। अब HH आ गया तो आप इसको क्या बोलोगे? ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ सिस फॉर्म, यानी कि Z। दिस वन इज Z। इस वाले को डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। अब इस वाले कार्बन पे ऑब्वियसली हाइड्रोजन लोअर प्रायोरिटी में जाएगा और ये वाला कार्बन हायर प्रायोरिटी में जाएगा। यहाँ पे ये हायर प्रायोरिटी में जाएगा, ये लोअर में जाएगा, तो ये भी क्या आ गया? सेकंड वाला Z। थर्ड वाले को भी डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। इस वाले कार्बन पे ना सिस अरेंजमेंट जाएगा, ना ही ट्रांस अरेंजमेंट जाएगा, ना ही ई जाएगा, ना ही जेड जाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम है और पहली कंडीशन आपकी थी डबल बॉन्ड होना चाहिए, सेकंड कंडीशन थी कि एक कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे तो ए ही नॉट इक्वल टू बी है, तो अगर देखा जाए तो फिर ये सिस और ट्रांस दोनों होना चाहिए, या ई और जेड दोनों होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास ये दोनों तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रखेंगे और ये वाला नहीं रखेगा। अगर आपके पास कुछ इस तरह का है, लेट अस से कि वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ अ पैटर्न, तो इसको आप कैसे करोगे? दिस इज अगेन वेरी इजी। जहां जहां पे आपके कोई ग्रुप नहीं लगा वहां पे आप हाइड्रोजन ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे तो खैर डबल बॉन्ड नहीं लगाया मैंने। जहां जहां पे है आपके पास वहां पे रेस्ट टू ग्रुप हाइड्रोजन ले लो। तो ये सारी कौन सी फॉर्म है? सिस। अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप होता देन वी कैन गो फॉर द ई एंड जेड फॉर्म। तो इज दैट क्लियर? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखते हैं? यस मैम। Okay, so now we can proceed toward the method of preparation. Regarding the preparation of alkene. Regarding the preparation of alkenes, the first method of preparation of alkene is from the, देखो हमने एल्केन प्रिपेयर किया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब हमने एल्कीन लिया था तो एल्कीन में हाइड्रोजन की एडिशन करके देन वी यू कैन से फॉर्म द एल्केन। अब हमें एल्कीन बनाना है तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द एल्काइन एंड वी कैन डू द वन टाइम एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन। From the alkyne we will start. Alkyne में CH ट्रिपल बॉन्ड CH we are having plus हाइड्रोजन एटम। क्या करेंगे? पैलेडियम और कार्बन। ठीक है, तो निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम रिडक्शन, कोई भी ऐसे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप डाल सकते हो इसमें। तो पैलेडियम क्यों? कार्बन की प्रेजेंस में व्हेन यू विल ऐड द हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इनमें मॉलिक्यूल आपने लिए, दो हाइड्रोजन एक एक साइड पे ऐड हो जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज इथाइन। एंड व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस? कॉमन नेम ऑफ दिस इज एसिटिलीन and this is ethene. And what is the common name of it? Common name of it is a ethylene. Is that clear? Yes ma'am. This is called as ethene or the ethylene, first method of preparation. Second, you can form from the alkyl halide. Everybody is aware of the term alkyl halide. Everybody knows what is alkyl halide. Yes, ma'am. yes sir. This is your first organic chapter in the 12th, haloalkane and the haloarine. एल्काइल का मतलब होता है बच्चा, मिथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, मिथाइल है।
इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, इथाइल। तो बेसिकली एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन जब हटा दोगे, then there will be the formation of the alkyl group that is called as a alkyl. ओके, तो फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड, जैसे मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है लाइक मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया मैंने, इसका आईयूपैक नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ब्रोमोमिथेन। इसमें रिएक्शन किया बच्चा हमने एल्कोहलिक KOH के साथ, इसको हीट किया, तो आपके पास क्या बनता है, अच्छा इसमें तो एक ही कार्बन है, एक और लेना पड़ेगा ना हमें, डबल बॉन्ड के लिए तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो हम ले लेते हैं मिथ की जगह इथ, ब्रोमो इथेन। तो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इथीन होता है। ये कैसे हुआ, हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड, क्या क्या इसके केसेस हो सकते हैं, उसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं बीटा डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। कर लूं बेटा शिफ्ट स्लाइड, तो दिस इज अ इथीन। तो लेट्स सी हाउ इट इज फॉर्म्ड। तो दिस इज अ CH3 एंड दिस इज अ CH2 एंड द Br, है ना, ब्रोमो इथेन हम लोगों ने लिया था। So we are just going to write this like this only. This is a CH2Br. Why? What is the purpose of writing in this manner? This is the 1 and this is a 2. तो इसको मैं अल्फा ले लेती हूँ, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है उसको अल्फा लेते हैं, उसके साथ वाले कार्बन को बीटा लेते हैं। और जो हमने इसमें रिएजेंट डाला है ना, वो एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH इज अ बेस, ठीक है। KOH अगर एक्वस फॉर्म में लिखा होगा तो उसमें से OH नेगेटिव सेपरेट होगा, K प्लस सेपरेट होगा, तो OH नेगेटिव का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या है, ये बेस की तरह एक्ट करता है। याद रखेंगे सब बच्चे, जब भी एल्कोहलिक KOH लिखा हो, देखो OH नेगेटिव दोनों तरीके से एक्ट करता है। OH नेगेटिव बेस भी होता है और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ठीक है, क्योंकि OH नेगेटिव का साइज स्मॉल होता है, ये दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है। तो अगर आपके पास KOH लिखा होगा और ब्रैकेट में AQ लगाया होगा, तो ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो इसका मतलब है कि ये OH नेगेटिव जनरेट करेगा और रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कोई एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में से बाहर जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल आके उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। बट अगर आपको लिखा हुआ है KOH एल्कोहलिक, इन दैट केस यू विल ट्रीट इट एज अ बेस। और बेस क्या करता है बेटा, बेस करता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट, और जब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, एल्कोहलिक KOH है, उसको क्या चाहिए, देखो क्या चाहिए एल्कोहलिक KOH को, अभी मैंने बताया बेस है तो प्रोटॉन चाहिए ना, इसकी एफिनिटी है टुवर्ड द प्रोटॉन, तो इसने प्रोटॉन लिया, देखो ये प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है। जब प्रोटॉन लेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और ये Br सिस्टम से बाहर हो जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस KBr माइनस वाटर, और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड और CH2। इस रिएक्शन का नाम है बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, बीटा का मतलब है बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन कैसे सिखाई थी आपको, जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है उसको अल्फा, उसके साथ वाले कार्बन को बीटा। तो बीटा पोजीशन से डिहाइड्रो, डी का मतलब है रिमूवल, बीटा पोजीशन से रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एंड दैट ऑफ द हैलोजन, ठीक है। तो माइनस ऑफ HX का जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं बीटा डिहाइड्रोहैलोजनेशन। हाइड्रोजन इसमें बीटा पोजीशन पे होता है और हैलोजन इसमें अल्फा पोजीशन पे होता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ बीटा डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। अब let us suppose that we are having the some different type of the alkane, alkyl halide। ये मेरे पास कुछ ऐसा था। Can everybody see कि in this reaction there are the one alpha and the 2 beta carbon atom। अल्फा तो किसको बोलने को बोला था आपको, अल्फा I said to the carbon which is containing the halogen, yes or no? Yes. So this is your alcoholic KOH। अगर ये अल्फा है तो देखो बेटा बीटा कौन होगा, फिर इसके बिल्कुल साथ वालों को बीटा बोलते हैं। दिस इज अ बीटा एंड दिस इज अ बीटा, ठीक है। तो मैंने डिफरेंट है, तो एक को बीटा लिख लिया, एक को बीटा डैश लिख लिया। ये दोनों अलग अलग है ना, एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है। तो जब आपके पास 2 बीटा हो रिएक्शन में, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। आपको क्या करना है, यू हैव टू कैरी दिस रिएक्शन विद द बोथ बीटा। देखो पहले अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन लूं और यहाँ से ब्रोमीन लूं, तो मैं आप सीधा ही लिख रही हूँ
क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा कि अगर मैं बीटा डैश से हाइड्रोजन लूं और यहाँ से अल्फा लूं, तो दूसरा प्रोडक्ट होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो जब आप इस रिएक्शन को अच्छे से एग्जामिन करोगे तो व्हाट विल यू सी, यू विल सिंपली चेक कि ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन को छोड़ के यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है एंड दैट एल्काइल ग्रुप इज अ इथाइल ग्रुप। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम है उनको छोड़ के 2 एल्काइल ग्रुप हैं, बोथ आर द मिथाइल ग्रुप्स। तो हमारे पास एक रूल पड़ा था GOC में, अगर आपको याद हो, दैट इज अ सेडजेफ रूल। याद है बच्चों? Yes, ma'am. सेडजेफ रूल कहता है कि मैक्सिमम एल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज स्टेबल, और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, मैक्सिमम एल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज स्टेबल। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था दैट इज अ हाइपर कॉन्जुगेशन। याद है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन से इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर बनी थी, किसकी सबसे ज्यादा बनी थी, Cr2 डबल, जिसके अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा। जिसमें 4 एल्काइल ग्रुप थे। यहाँ पे तो खैर एक ही है। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम हम देखते थे, अल्फा CH के इलेक्ट्रॉन कितने डबल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। दैट इज अ सेडजेफ प्रोडक्ट एंड दैट इज मोर स्टेबल। और दूसरे वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं हम क्या, दिस नेक्स्ट वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ हॉफमैन प्रोडक्ट। और ये जो आपका सेडजेफ प्रोडक्ट होता है ये होता है मेजर, और दूसरे वाला प्रोडक्ट होता है आपका माइनर। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड इन द केस ऑफ द सेडजेफ रिएक्शन। और ये मैंने बहुत आपको एक्सप्लेन कर दिया था। लेट मी टेक द वन मोर एग्जांपल टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट अस सपोज कि मेरे पास कुछ ऐसे है, okay, what about this, this is a alpha and here 2 are the beta, this is a beta and this is beta dash. Now what would happen, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, अच्छा ये अल्फा है, एक Br ये हो गया आपका, और यहाँ पे कलर ले लेते हैं अलग, और एक बार हम यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहे हैं। तो अगर बीटा डैश वाला हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो आपके पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3। इज दैट क्लियर? मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटाया, अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन हटाती हूँ तो क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। अब चेक करो जरा, यहाँ से मैंने माइनस ऑफ बीटा हाइड्रोजन किया, यहाँ से मैंने माइनस ऑफ बीटा डैश हाइड्रोजन किया। बीटा डैश हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, बाकी सब एज इट इज। बीटा वाला हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, हेलोजन वाली साइड आएगा ना डबल बॉन्ड, तो और बाकी सारा सेम। तो इस पे देखो एक एल्काइल ग्रुप है, और इस पे एल्काइल ग्रुप जरा काउंट करो, 1 2 3। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम एल्काइलेटेड। तो मैक्सिमम एल्काइलेटेड है यानी कि मेजर है, और इस प्रोडक्ट को क्या बोलोगे, ये कौन सा प्रोडक्ट है, सेडजेफ प्रोडक्ट। और ये बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। और बाकी रिएक्शन में कंडीशंस का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। एंड व्हाट इज द बेस, बेस हियर इज व्हाट बेटा, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is the second method of preparation of alkene, and the third method of preparation of alkene is from the dihaloalkanes. अभी तक हमने monohaloalkane यानी कि you can say कि from the alkyl halide prepare किया था. Now is from the dihaloalkane. Now what is this dihaloalkane? इसको हम बोलते हैं vicinal dihalide. Another way of telling it as a विसिनल डाइहैलाइड। अगर मेरे पास 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पे सेम हेलोजन लगे हैं तो इस कंपाउंड को पढ़ते हैं विसिनल। पता है ना बेटा आपको, दिस इज कॉल्ड एज अ विसिनल डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे 2 सेम हेलोजन लगे हो तो व्हाट डू वी कॉल देम एज, वी कॉल देम एज जेम। अगर ऐसा हो ना, एक ही कार्बन पे 2 सेम हेलोजन लगे हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज अ जेम डाइहैलाइड। And this one is called what? This one is called vicinal dihalide. Vicinal Z dihalide को अगर आप जिंक के साथ ट्रीट करोगे तो when you treat it with the zinc in the presence of some alcohol,
Okay, you can just carry out the reaction with the zinc, then we'll tell you the another reaction in the other example. Then what would happen? तो देखो ZnBr2 रिमूव हो जाएगा. मैंने x लिखा है तो ZnX2 लेंगे. आप ऐसे इसको रिमूव कर सकते हो कि एक x प्लस जाएगा, एक x माइनस जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और बेसिकली आपके रिएक्शन में से ZnX2 चला जाएगा. एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज देयर. ठीक है. इसमें सॉल्वेंट एसिटिक एसिड होता है जिंक के साथ. एंड इफ यू कैरी द रिएक्शन विद द NaI तो सॉल्वेंट एसीटोन होता है. इसमें आप सॉल्वेंट लिख सकते हो ACOH. इफ यू कैरी द रिएक्शन विद द सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन देन अगेन द सेम रिएक्शन वुड अकर. तो भी प्रोडक्ट यही आएगा, चाहे जिंक के साथ कर लो चाहे सोडियम आयोडाइड के साथ कर लो. बस इसमें बाय प्रोडक्ट अलग निकलेंगे. आयोडीन एंड 2NaBr वुड बी द प्रोडक्ट. NaBr या NaX लिखा है तो X सही. Okay, so this is from the vicinal dihalide. The third method of preparation is the very very famous method of preparation. ये हो जाएगा फोर्थ आपका. थर्ड तक तो हो गया आपका डिहाइड्रेशन. एक हो गया आपका डिहाइड्रोहैलोजनेशन, एक हो गया आपका विसिनल वाला, फर्स्ट वाला हो गया unsaturated hydrocarbon. So this is a fourth one from the dehydration of alcohol. From the dehydration of alcohols. Regarding the dehydration of alcohol, let's take the example of the alcohol CH3 CH2OH. When you treat the alcohol with the concentrated sulfuric acid, okay, and heat, then the answer is a alkene. Now let's check out the mechanism कि इसमें से water का loss कैसे हुआ. Dehydration obviously means the loss of the water. Let's check out the mechanism of this reaction. सबसे पहले तो बच्चा H2SO4 है हमारे पास, तो वो क्या देगा हमें? प्रोटॉन देगा ना. हाँ जी, तो H प्लस देगा. तो CH3 CH2OH is here. एंड एसिडिक प्रोटॉन, आपके पास एसिड है, यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन करेगा. तो एसिड बेस रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म होगा. मैंने आपको बताया बहुत बार, जब जीओसी पढ़ी है तब भी बताया था कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी एसिड बेस रिएक्शंस की होती है. तो सबसे पहले यू हैव टू फॉलो विद दैट CH3 CH2OH2, ठीक है, प्लस. तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल. दिस इज अ फर्स्ट स्टेप. Protonated alcohol will form. What would happen in the next step? Everybody knows that the oxygen is a highly electronegative species, so the positive charge on the oxygen won't be stable. So what would happen? ये loss of the water कर देगा. Water is a good living group. इसमें से water minus हो जाएगा. तो water minus हो जाएगा तो क्या form हो गया बच्चा? यहाँ पे form हो गया formation of the carbocation is there. Formation of the कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया. तो थर्ड स्टेप में से जो आपका कार्बोकेटायन है वो लॉस कर देगा हाइड्रोजन का. ये कार्बोकेटायन था, तो एडजेसेंट वाले कार्बन से जो H प्लस उसने लिया था वो स्टार्टिंग में वो रिलीज हो जाएगा दोबारा. तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन. थर्ड स्टेप इज अ रिलीज ऑफ H प्लस. रिलीज ऑफ H प्लस. तो कार्बोकेटायन है, उसको इसकी डेफिशिएंसी की कार्बन की ओवरकम करने के लिए साथ वाले बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन एटम का हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, H प्लस चला जाएगा रिएक्शन से बाहर और फॉर्मेशन हो जाएगी एल्कीन की, इथीन की. और यहाँ पे भी सिरजेफ रूल अप्लाई होगा. मतलब जो रोल पीछे आप X और उसके साथ वाले हाइड्रोजन के साथ कर लेते, सिमिलरली यू हैव टू कैरी द रिएक्शन विद द सेम मैकेनिज्म. मैं आपको एक एग्जांपल इसकी दे देती हूँ. जैसे ये एग्जांपल है CH2 CH3 एंड CH2. कैसे सिखाया था आपको? जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उसे अल्फा बोलते थे. यहाँ पे जिस कार्बन पे OH लगा है उसे अल्फा बोलो, उसके साथ वाले दोनों को बीटा बोल दो. और अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन है तो हाउ यू कैन कैरी द रिएक्शन? either you can remove this hydrogen or you can remove this hydrogen. If you will remove the hydrogen from the beta position, then there would be the double bond here और आपके पास आ गया ये प्रोडक्ट. And if you will do the reaction with this hydrogen, minus of hydrogen beta dash position से हटाओगे
तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 यू आर हैविंग द एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, and here 1 2 3। okay, now how you will decide which what would be the major and the what would be the minor product? In this case, what would be the major and the what would be the minor product? ये तो सेम है। अब एक बीटा ये भी है, इसको डबल डैश बोल दो, तो माइनस ऑफ हाइड्रोजन बीटा डबल डैश कर दो, तो यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड CH2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका CH2 CH3। अब इसमें कितने अल्काइल ग्रुप हुए? 1 और ये। अब टेक्निकली देखा जाए तो जिनका IUPAC नेम सेम है वो तो एक जैसे ही प्रोडक्ट हुए ना। C डबल बॉन्ड C इज देयर एंड द 2 अल्काइल, सॉरी आई हैव मार्क्ड 3 ना, देखो ये तो 2 ही है, Yes, ma'am. है ना, आई रॉन्गली मार्क्ड इट एज अ सर्कल। तो अब कितने हो गए आपके पास? इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2। तो जहां पे दो सेम आ रहे हैं वो तो सेम ही प्रोडक्ट हुए। एक ग्रुप है आपके पास इथाइल, एक है मिथाइल, तो एक इथाइल एक मिथाइल, तो ये तो 2 हो गए सेम। ठीक है, और ये वाला हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। इन दोनों को आप एक बार ही लिखोगे, 2 बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, Yes, ma'am. now you have to proceed for the dehydration of the alcohols. Okay, this is about the method of preparation, and after the method of preparation regarding the physical properties, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका थोड़ा आपको डाइपोल मूवमेंट का आइडिया होना चाहिए। ये हमने डाइपोल मूवमेंट वाले टॉपिक में भी किया था जब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। मैंने 2 मॉलिक्यूल बोर्ड पे लिखे हैं। किसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होंगी, कौन पोलर होगा, कौन नॉन पोलर होगा, दैट यू हैव टू चेक। ये सिस हो गया आपका, ये ट्रांस हो गया। ठीक है, ये तो मैंने EZ भी नहीं सिस ट्रांस वाली फॉर्म ली है। तो एग्जैक्टली अगर डाइपोल मूवमेंट वेक्टर देखोगे तो ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तरफ एरो जाएगा, इधर ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी तरफ, कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो दैट मींस एग्जैक्टली ऑपोजिट एरोज हैं, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट क्या होगी? 0। डाइपोल मूवमेंट 0 है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और जो सेस है इसकी डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 है। डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये कंपाउंड कैसा होगा? Non-polar. Polar. Yes. डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया नॉन पोलर। डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 का इसका मतलब है, देखो म्यू जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी होती है। ठीक है, तो ये कंपाउंड आ गया आपका पोलर। तो किसमें नेट रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बचता है? नेट रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बचता है इन द केस ऑफ पोलर कंपाउंड्स। Okay, and regarding the addition, you can say the heading chemical properties. कैसे reaction देंगे? At the start of the class we had discussed what type of the reactions Addition. we give the addition reactions. So the first addition reaction we can carry with them is the addition of the halogen. आप हाइड्रोजन भी कर सकते हो, हाइड्रोजन इज अ वेरी सिंपल, वैसे तो हैलोजन भी बहुत सिंपल है, चाहे हाइड्रोजन कर लो चाहे हैलोजन कर लो, एक ही में दोनों कर देते हैं। चलो, अगर आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या फॉर्म होगा बेटा? तो आपके पास फॉर्म हो जाएगा एल्केन। अगर आप इसमें हैलोजन की एडिशन करोगे, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है, तो आपके पास फॉर्म हो जाएगा विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, सेकेंड है इसमें एडिशन ऑफ द हैलोजन एसिड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। एडिशन ऑफ द हैलोजन एसिड, व्हाट डू यू कॉल एज अ हैलोजन एसिड्स? HX। Yes, ma'am. तो ना जिसमें बेटा HI आ सकता है, HBr आ सकता है, HCl आ सकता है, दीज आर द हैलोजन एसिड। और कैसे रिएक्शन होगा हैलोजन एसिड में? देखो हैलोजन एसिड आपको पता ही है कैसे डिसोसिएट होगा, इट विल डिसोसिएट लाइक H+ and the X negative and when you carry forward the reaction with them,
ये मैंने ले लिया पहले तो सिंपल सिमेट्रिकल एल्कीन। जब मैं ये वर्ड यूज करूँ ना सिमेट्रिकल एल्कीन, इसका क्या मीनिंग होता है? सिमेट्रिकल एल्कीन का मीनिंग होता है डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिकल एल्कीन। एंड इफ आई हैव एडेड द सिंपल हैलोजन एसिड HX इन इट, तो दिस इज वेरी इजी, ये पोलर कंपाउंड है, एवरीबडी नोज द प्लस एंड अ माइनस इज देयर, तो ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा और आपके पास आंसर बन जाएगा CH3 एंड द CH2X, यानी कि बेसिकली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड, there is a formation of the alkyl halide in that. And if we are having the reaction in the case of addition reaction in the case of the unsymmetrical alkene, CH3 CH double bond CH2, and now we are adding the halogen acid like HBr या HCl to it. अब कैसे कहाँ पे किसको एडजस्ट करोगे डबल बॉन्ड में, किस साइड पे हेलोजन को और किस साइड पे हाइड्रोजन को लगाओगे, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द रूल। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रूल? Markovnikov's rule. Markovnikov's rule states that whenever you are going to attach any of the attacking reagent to the unsymmetrical alkene, this rule is applicable to the unsymmetrical alkene only, because symmetrical में तो कोई problem ही नहीं है, किसी भी side पे किसी को भी attach कर सकते हो। Then what would happen in the case of the unsymmetrical alkene? The जो आपका negative part होगा ना attacking reagent का, negative part of the attacking reagent will join to that carbon atom of a double bond which is containing the lesser number of the hydrogen atom. अब double bond में 2 carbon atom है, lesser वाला कौन सा है? ये, ठीक है ना, और ये यहाँ पे अटैच होगा। अगर ये इस पे अटैच होना तो ऑब्वियसली इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, मतलब डबल बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हुआ होगा तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आया पार्शियल, तब नेगेटिव इसमें साथ अटैच हुआ है। तो आंसर आएगा आपका CH3 CH Cl and CH3. So that means that here the answer is a 2-chloropropane. 2-chloropropane is the answer. Let me give you the mechanism regarding this कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हम नेगेटिव पार्ट वहां पे अटैच कर रहे हैं डबल बॉन्ड में जहां पे कम हाइड्रोजन एटम है जिस कार्बन एटम पे। इफ वी आर हैविंग द CH3 CH and CH3 CH and double bond CH2, and if we are taking the addition of halogen acid like HCl, चलो लिया था वही ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल HCl एक एसिड है तो ये H+ जनरेट करेगा। तो देखते हैं कि इस पे जो H+ का अटैक है वो कैसे कैसे हो सकता है। देखो ये एक तो व्हाइट कलर से कर देते हैं कि अगर तो हाइड्रोजन, ये जो आपका डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग है जिसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, अगर ये राइट साइड पे होता है तो ये नेगेटिव होगा ना, तो इसके साथ H+ यहाँ चला जाएगा, CH3 CH एंड CH3 बन गया और यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरा वे येलो कलर से दिखा देते हैं, अगर आपका डबल बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट हुआ तो ये नेगेटिव हुआ होगा, तब आपके पास फॉर्म हुआ होगा CH3 CH2 और फिर ये वाला CH2+ हो गया होगा। These are the two ways by which you can form the carbocation, and this is the ionic mechanism. And the name of the rule is a Markovnikov's rule. Markovnikov's rule. तो अब आपका जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन दैट वी हैव फॉर्म्ड, एंड दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। जो आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो हमें पता है कि ये मोर स्टेबल है, और जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो लेस स्टेबल है। बोथ द इंडक्टिव इफेक्ट एंड योर हाइपर कंजुगेशन सपोर्ट दिस फैक्ट। एंड अगर 2 डिग्री मोर स्टेबल है तो ये मेजर अमाउंट में फॉर्म होगा। तो बाकी अब क्या रह गया, अब आपके पास BaCl का अटैक रह गया, इसमें से H+ का तो करवा लिया आपने, Cl नेगेटिव का इसके साथ अटैक होगा तो CH3 CH Cl and CH3. So this is a 2-chloropropane you are getting in the major amount. 2-chloropropane you are getting in the major amount here. तो इज दैट क्लियर कैसे मार्कोनिकॉफ रूल से आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next the same reaction if you are carrying this reaction in the presence of the peroxide. So this is the, I am saying this is a 2B, Markovnikov was a 2A.
2B में आपके पास आता है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का अनदर नेम होता है खराश इफेक्ट। ठीक है, या इसको एक तरह से बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि परऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। मान लो आपके पास रिएक्शन सेम आया एग्जाम में, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, पर एरो के ऊपर HBr और परऑक्साइड लिखा हुआ है। ठीक है, और जो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो हैलोजन एसिड्स में से सिर्फ HBr के केस में अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें होता है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और HBr ही फ्री रेडिकल में इजीली ब्रेकअप हो जाता है। तो जब आपके पास HBr एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड होगा, तो जो आपने पहले माइनर प्रोडक्ट बनाया था ना, दैट वुड बी नाउ द मेजर वन। Initially that was a 2 haloalkane, now this is a 1 haloalkane या 1 bromopropane, 1 bromopropane, this is a major product this time। ठीक है, अब ऐसे क्यों होता है पहले देख लो इसका मैकेनिज्म भी। The reaction we are carrying in the presence of the peroxide, तो peroxide में benzoyl peroxide ले लेती हूँ, वैसे H2O2 भी आप ले सकते हो, सिंपल वन। C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। आपको पता है कि पेरोक्साइड जहां भी होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है, वी हैव डन दैट। एंड इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट इट विल ब्रेक अप इनटू द 2 इक्वल पोर्शंस, तो बन जाएगा 2C6H5, इसका होमोलिटिक फिशन होगा C डबल बॉन्ड O एंड O डॉट। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका होमोलिसिस हो गया। अब इसमें भी किसी भी रिएक्शन में अगर कोई गैसियस प्रोडक्ट निकलता है तो वो रिएक्शन की एंट्रोपी को बढ़ाता है, तो दैट इज अ फेवरेबल पार्ट। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्लब हो जाएंगे और आपके पास बन जाएगा 2C6H5 डॉट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब C6H5 बहुत बड़ा है, इन ऑर्डर टू कैरी इट फॉरवर्ड मैं सिंपल इसको ना R लिख देती हूँ, 2R डॉट, कुछ भी हो सकता था ये। ठीक है, तो यहां से हमारे पास हुआ जनरेट फ्री रेडिकल, एल्काइल या एराइल फ्री रेडिकल। तो फर्स्ट स्टेप सभी को क्लियर है कि क्या करता है फ्री रेडिकल? Yes. Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि इसके साथ क्या होगा। फ्री रेडिकल जनरेशन तो हो गया, अब मेरे पास है रिएक्शन में CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड HBr, ऐसा रिएक्शन था। अब क्या होता है कि जो आपका HBr था उसके साथ जो आपने C6H5 डॉट या जो भी R डॉट फ्री रेडिकल जनरेट करवाया है वो इसका होमोलिटिक फिशन कर देगा और फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजीन का, और आपके पास जनरेट हो जाएगा Br डॉट। तो ये हो गया फ्री रेडिकल Br के केस में। अब ये करेगा अटैक आपकी एल्कीन पे। अब इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, Br फ्री रेडिकल है, तो एक को इधर एक को इधर। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। दिस इज अ CH3CH, या तो Br यहाँ पे लग जाए और यहाँ पे CH2 डॉट हो जाए, तो ये बनेगा प्राइमरी फ्री रेडिकल। यहाँ पे क्या हो सकता है, CH3CH2 यहाँ पे डॉट रह जाए और यहाँ पे फॉर्म हो जाए CH2Br, तो ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब बताओ कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? 2 degree. यस, दिस इज अ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। तो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है तो ये मेजर भी होगा, तो अगर ये मेजर फ्री रेडिकल भी है तो हम इसी को लेके चलते हैं। ये आगे क्या करेगा, एक और मॉलिक्यूल ले लेगा HBr, ये तो चेन चलती रहेगी आगे। HBr में से H को ले लेगा, CH3CH2 एंड CH2Br, ये फॉर्म हो जाएगा और Br फ्री रेडिकल फिर से जनरेट हो जाएगा, और Br फ्री रेडिकल फिर से और मॉलिक्यूल ले लेगा आपके इसको एल्कीन के, एंड द प्रोडक्ट इज अगेन द 1 ब्रोमो। ठीक है, पेरोक्साइड एप्लीकेबल है HBr पे, HF और HCl पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना ये।
क्योंकि HCl और HI कभी भी आपके आयनिक, हमेशा आयनिक मैकेनिज्म देते हैं, वो फ्री रेडिकल में सपोर्ट नहीं करेंगे। या ऐसा भी सुन लो, अगर HF और HCl के साथ पेरोक्साइड भी लिखा हुआ है ना, तो तुम मार्कोनिकॉफ करके आओगे, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं करके आओगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ आप HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करके आओगे। ठीक है बेटा, चले आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आफ्टर द एडिशन ऑफ द हैलोजन एंड द हाइड्रोजन, उनको वन ही ले लेते हैं। सेकंड इज HBr एंड देन इज इसको थर्ड रिएक्शन लो। दिस इज योर एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर को हाइड्रेशन भी बोल सकते हो। ये भी आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा के करोगे। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। वाटर आपने ऐड किया किसी एसिड के प्रेजेंस में, 60 to 70% एसिड। अब वाटर के दो आयन तो सब जानते हैं, और उसमें नेगेटिव पार्ट भी जानते हैं, और नेगेटिव पार्ट को कहाँ पे लेके जाना है वो भी पता है। CH3 CHOH एंड CH3। दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अगर आपके पास यू कैन से ऐसा कुछ कंपाउंड है लाइक CH3 CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2, अब बताना जरा वाटर किस डायरेक्शन में जाएगा? H+, इस पे जाएगा या इस पे जाएगा? CH2. नेगेटिव पार्ट आपको भेजना है जहां पे कम हाइड्रोजन है, कम यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसी को दोगे, और यहाँ पे आपका चला जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि H+। so this is how you have to carry the reaction. Fourth reaction is oxidation, very important. This is a very important reaction, oxidation. ऑक्सीडेशन में काफी सारे रिएक्शन आते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैं इसका ए पार्ट कर देती हूँ। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये आपके 12th केमिस्ट्री में भी है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल में, अगर आपको याद हो तो। याद है बच्चा, फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा आपने एल्कोहल वाला चैप्टर? हम सेकंड टर्म में वैसे पढ़ा हुआ है। नहीं, फर्स्ट टर्म में आपको एल्काइल हैलाइड आया था, हेलो एल्कीन। CBSE को अब तो कार्बोनिल होगा ना सेकंड टर्म में? नो मैम, वो CBSE में था। अच्छा, आपके बोर्ड में अभी आपको ऑर्गेनिक में क्या क्या आएगा? चार पूरी चैप्टर। ऑर्गेनिक आएगी। अच्छा, पूरी ऑर्गेनिक अब आएगी, तो फर्स्ट टर्म में आपको ऑर्गेनिक नहीं आई है? यस। ओके। एक्चुअली CBSE में पहले 2 चैप्टर जो है ना, एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, वो चैप्टर आ चुके हैं। अब कार्बोनिल और नाइट्रोजन वाला अब आएगा। चलो एनी हाउ, आपने किसी ने पहले दिया किसी ने बाद में, पढ़ना तो सभी को है। चलो फिर तो अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ो फिर तो इसको। अब देखो बेटा, ये मेरे पास है एल्कीन, मैं स्टेप वाइज करवा रही हूँ आपको, ठीक है? आपने डाइबोरेन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना जब हमने P ब्लॉक किया था, B2H6। Yes, ma'am. इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके सेंट्रल वाले यानी कि ब्रिज्ड बॉन्ड्स हैं वो वीक हैं, और B2H6 जहां भी लिखा हो उसको आप BH3 ही लेके चलोगे, है ना? ये डायमर है BH3 का, और रिएक्शन इसके बताए थे आपको कैसे होने हैं। अब देखो, जो BH3 है ना, बेसिकली इस रिएक्शन में ये ऐसे पार्टिसिपेट करेगा, BH2 एंड H, क्योंकि अब इसके पास तो है नहीं है कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे H नेगेटिव का अटैक होगा, जिसे हम बोलते हैं हाइड्राइड अटैक। ठीक है, हाइड्राइड अटैक। ये मैंने इथीन लिया, इथेन से थोड़ा सिंपल जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, प्रोपीन ले लेते हैं ताकि मार्कोनिकॉफ रूल की समझ में आ जाए। प्रोपीन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चलो अब इस पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहां पे कम हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन पे भेज दो। रिएक्शन में चाहे B2H6 लिखा हो, चाहे रिएक्शन में BH3 लिखा हो, मैकेनिज्म यही होगा, CH3 CH2 एंड CH2। अब इस वाले कार्बन के साथ क्या जाएगा? इस वाले कार्बन के साथ बाकी बचा हुआ पॉजिटिव पार्ट जाएगा। पॉजिटिव पार्ट क्या है? BH2। जब तक बोरॉन के पास एक भी हाइड्रोजन पेंडिंग है ना, तब तक आप इस रिएक्शन को करते जाओगे। फिर से ले लो एक एल्कीन का मॉलिक्यूल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से इसको ब्रेकअप कर लो,
जब इसको ब्रेकअप करोगे तो क्या आएगा, BH एंड H। अब फिर से ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव फिर से इसके पास जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 और BH, या मेरे को ये पहले लिख देना चाहिए है ना, इस ये वाले कार्बन पे चला गया और इस CH2 पे फिर क्या चला गया। आपको ये समझ में आ रहा है ना, मैंने ये वाला लिखा है, ये जो CH था ये CH2 हो गया, CH2 के साथ अब ये सारा लग जाएगा जो क्या है BH CH2 CH2 CH3। इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने की बजाय इट इज इजी टू राइट लाइक CH3 CH2 CH2 ट्वाइस एंड BH। किस किस बच्चे को यहाँ तक ये स्टेप समझ में आ गया। यस अब इसमें एक और मॉलिक्यूल ले लो, मैंने कहा था जब तक बोरॉन में एक भी हाइड्रोजन है तब तक हम ये स्टेप करते जाएंगे। अब यहाँ से फिर ये एक H नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, तो अब बोरॉन की कहाँ जाएगा, इस कार्बन के साथ और H इसके साथ, तो यानी कि क्या आएगा CH3 CH2 CH2 और वो अल्टीमेटली थ्राइस हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा B। तो जब सारे के सारे खत्म हो जाएंगे हाइड्रोजन, फिर हम इसमें डालेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 में OH 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 आपको मिलेगा। अब 3 OH तो बोरॉन को दे दो, 3 OH बोरॉन को मिलेंगे तो BOH3 फॉर्म हो जाएगा। ये क्या है, ये भी हम पढ़ के आए हैं पीछे, बोरिक एसिड, याद है क्या। यस मैम ये बन जाएगा और बाकी के 3 मॉलिक्यूल में है ना जो CH3 CH2 CH2OH, उनमें बन जाएगा एल्कोहल। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बेसिकली कन्वर्ट द एल्कीन टू द एल्कोहल। अब इस एल्कीन से जो एल्कोहल बन रहा है वो आपका कैसा एल्कोहल बन रहा है, 1 प्रोपानॉल बन रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हुआ है, ये मार्कोनिकॉफ रूल से ही हुआ है, बस मैकेनिज्म ऐसा था कि यहाँ से हाइड्राइड का अटैक होता है। आप अगर इसको ध्यान से देखो, अगर डायरेक्ट देखो, बीच का मैकेनिज्म ना देखो, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है तो दिस इज अ 1 प्रोपानॉल, प्रोपेन 1 ठीक है, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें हाइड्राइड अटैक होता है बेसिकली, और हाइड्राइड अटैक के हिसाब से देखा जाए तो ये मार्कोनिकॉफ रूल ही है। तो ये फर्स्ट पार्ट है ऑक्सीडेशन का, जिसमें एल्कीन कन्वर्ट होती है अल्कोहल्स में। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और असेंडिंग डिसेंडिंग चेन नहीं है। चलें आगे। यस मैम। यस मैम। सेकेंड पार्ट है ऑक्सीडेशन का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। Now what is this oxymercuration demercuration reaction? एल्कीन लिया, एल्कीन के साथ HgOAC ट्वाइस, ये एसीटेट ग्रुप है, ठीक, और Hg के ऊपर 2+ होगा तो मर्क्यूरिक हुआ, ठीक है। अगर +1 हो तो मर्क्यूरस, +2 हो तो मर्क्यूरिक एसीटेट। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो पहले स्टेप में तो क्या होगा कि ये ऐसे लग जाएगा, देखो CH2OH एक साइड लग जाएगा और ये वाला जो ग्रुप है HgOAC ये एक साइड लग जाएगा, ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट दिखाना है, दिखाओ, नहीं दिखाना नहीं दिखाओ। तो लास्ट में सोडियम बोरॉन हाइड्राइड और बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे भी आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल हो जाएगा और मर्करी बाहर आ जाएगा। तो दिस इज अगेन द कन्वर्जन ऑफ दिस। बस ये रिएजेंट ध्यान में रखना, इस रिएजेंट की प्रेजेंस में भी अल्कोहल बनते हैं। एंड द थर्ड रिएक्शन इज द विद द पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट का क्या फार्मूला होता है बेटा? KMNO4। KMNO4 को बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, पता है ना? यस मैम। बेयर्स रिएजेंट। KMNO4 का कौन सा कलर होता है मैम पिंक। लाइट पर्पल। हाँ जी, बोल सकते हैं, पर्पल भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे पिंक लिखा होता है बुक्स में, ठीक है। बाकी जिन्होंने देखा है दे नो दैट वायलेट सा कलर होता है। तो KMNO4 का पिंक कलर डीकलराइज हो जाता है यहाँ पे। देखो क्या होता है बेसिकली रिएक्शन, अगर मेरे पास एल्कीन है, 3 मॉलिक्यूल्स इसके ले लेते हैं, और इसमें हमने वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन लिखा है। आपको पता है ना पोटाशियम परमैंगनेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट जनरेट द नेसेंट ऑक्सीजन। यस मैम।
है ना, KMnO4, K2Cr2O7, H2O2, ये नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो पानी के साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आया, KMnO4 ने दिया। तो जब इसके साथ रिएक्ट करोगे कोल्ड कंडीशन में, तब आपके पास ये जो एल्कीन थी ये OH जहां पे लग जाएगा, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोल, ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो गई। तो पहले KMnO4 का क्या कलर था, पिंक कलर था। जो आपका ग्लाइकोल फॉर्म हुआ वो क्या है, कलरलेस है। तो दिस बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द अनसैचुरेशन, टू टेस्ट द अनसैचुरेशन। तो पिंक कलर अगर डीकलराइज हो गया तो आपके पास कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, और अगर नहीं हुआ तो वो सैचुरेटेड है। सेम मैंने पहले रिएक्शन किया ना हैलोजनेशन, तो उसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी इसी के लिए यूज होता है। जैसे ब्रोमीन का जो कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा अब अगर विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन एंड द सिस डायोल इज फॉर्म्ड। इसको सिस डायोल भी बोलते हैं। सिस का मतलब कि एक ही साइड पे दो OH ग्रुप लगेंगे, और ये डबल बॉन्ड के लिए टेस्ट है। और अगर मेरे पास इथीन की जगह कुछ ऐसा कंपाउंड हो, जैसे कि एक कार्बन ज्यादा है इसमें, प्रोपीन ले लिया मैंने, इसमें आपने डाल दिया अल्कलाइन KMnO4 और इसको हीट कर दिया, और एसिडिक कंडीशंस आर देयर। सेकेंड स्टेप में है ये, फर्स्ट स्टेप में अल्कलाइन है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा फिर वो एसिड होगा, और एक कार्बन कम होगा। तो ये कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि अगर एल्कलाइन KMnO4 आप प्रोपीन के साथ लोगे, एंड इन दैट केस आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और एक कार्बन कम हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी रिएक्शंस आते हैं उनमें कई बार क्या होता है ना, एक एक स्टेप बीच में पूछा होता है। जैसे ओजोनलिसिस का कोई एक स्टेप है, फिर आगे कोई रिएजेंट दिया हुआ है, तो दिस रिएक्शन इज अ थर्ड ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या है, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मेरे पास इथीन है, तो पहले ओजोन से इसको ट्रीट किया। तो जब ओजोन से ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है ओजोनॉइड का। इसको आप हट वाले रिएक्शन के हिसाब से याद रखो कि सबसे पहले हट का फॉर्मेशन होता है, 3 के 3 ऑक्सीजन इसके साथ लग जाते हैं। अब क्या आ गया, फ्लड आ गया, पानी डाल के हट को तोड़ दो, ऐसे हट को तोड़ना, और इस कंपाउंड को बोलेंगे ओजोनॉइड। जब इसको ब्रेकअप करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बना, CH2O बना ना, इसके 2 मॉलिक्यूल, ये बेसिकली क्या है, HCHO। तो ये कन्वर्जन किसका हो गया, इथीन का किसमें हो गया, मिथेनॉल। अगर मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे ले लिया, तो आप अपना मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रखो। C के साथ 2 ग्रुप हैं, एक CH3 है, एक H है, और यहाँ पे C के साथ 2 ग्रुप हैं H। आपको पहले बनाना है हट, ये फॉर्मेशन हो गया हट का। उसके बाद वाटर डाल के हट को ब्रेक कर देना है। ठीक है, जब हट को ब्रेक करते हैं तो जिंक भी डलता है। ठीक है, और माइनस हो जाता है H2O2, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है ना। ठीक है जी, तो अब क्या बना, देखो CH3 CHO एक साइड बना और दूसरी साइड बना HCHO। इस रिएक्शन को यूज भी करते हैं प्रोडक्ट्स को कि रिएक्टेंट क्या है वो देखने के लिए। जहां पे डबल बॉन्ड होगा दोनों का, उसको हटा दो, बाकी सब जोड़ दो। मैं भी बताती हूँ आपको। ये क्लियर है सारे प्रोडक्ट? Yes. अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ तो, बिना किए बताओ। अब इसको भी CH3 कर देते हैं। अगर इसमें ओजोन करोगे पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में जिंक और वाटर डालोगे, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहला एसीटोन, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथानॉल। देखो यहां से देख लो ना। और अगर इनसे प्रोडक्ट से पता लगाना है रिएक्टेंट क्या है, तो C डबल बॉन्ड O का फेस दोनों का एक साइड करके रख लो। देखो ये 2 प्रोडक्ट आए ना, इसमें से ऑक्सीजन हटा दो और डबल बॉन्ड से जोड़ दो, बन गया रिएक्टेंट। तो आप प्रोडक्ट से भी पता लगा सकते हो कि क्या है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी, अब इसमें
अगर एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी आप करते हो ना, तो भी आपके पास वैसे एंड प्रोडक्ट अल्कोहल ही आता है। जैसे मान लो मैंने कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली और उसमें ऐड कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे डिसोसिएट करोगे? H प्लस OSO3H लिखते हैं, बाकी नेगेटिव पार्ट को SO4H लिखेंगे तो सल्फर से ज्वाइन हो जाएगा। अगर OSO3H लिखेंगे तो पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन से ज्वाइन होगा। जब ये ऑक्सीजन से ज्वाइन होगा तो नेगेटिव पार्ट ले जाओ आप उसके पास जहां पे कम हाइड्रोजन है। OSO3H यहाँ पे हो गया और CH3 यहाँ पे हो गया। अब सब बच्चों को पता है इतना बल्कि ग्रुप है, कहाँ स्टेबलाइज कर पाएगा, तो वाटर के साथ इसको ट्रीट करते हैं। तो जो आपका ये O है ये H ले लेता है और इस वाले पूरे ग्रुप को सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, ये रीजनरेट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब आपके पास प्रोडक्ट अभी भी क्या बनता है? एल्कोहल ही बनता है। ठीक है, तो दिस इज द योर अबाउट द एल्कीन्स, दिस इज ऑल अबाउट एल्कीन। इज इट क्लियर नाउ? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? लास्ट हाइड्रोकार्बन है आपका सेकेंड लास्ट, इसके बाद है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स आल्सो, एल्काइंस। एल्काइंस और भी इजी है थोड़ा सा, इसको स्टार्ट कर लेते हैं फिर पोल के क्वेश्चन लेंगे। एल्काइंस बेटा जनरल फॉर्मूला क्या है एल्काइंस का? नेक्स्ट क्लास में ना टुमारो भी CnH2n-2। हाँ जी हाँ जी, ये मैं अभी बता रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे थोड़ा रिमाइंड भी करवा देना। नेक्स्ट क्लास में व्हेन यू पीपल विल कम देन आई विल शो यू द सम ऑफ द कन्फर्मेशंस ऑफ द साइक्लोब्यूटेन, जिसमें स्क्यू एंटी गॉचे भी आएंगी, उनसे भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। टुडे इट्स स्किप्ड फ्रॉम माय माइंड। मुझे लगता है लास्ट क्लास में हमने सिर्फ स्टैगर्ड और वही की है, एक्लिप्स इथेन की ही, ब्यूटेन की एक बार करवा दूंगी। तो नेक्स्ट क्लास में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एल्काइंस एंड द एरोमेटिक, मुझे रिमाइंड करा देना, उसे एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉर्मूला अभी एक बच्चे ने बताया, एब्सोल्युटली करेक्ट, CnH2n-2। ये भी बच्चा क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड वन मोर थिंग इज कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनमें, एक सिग्मा है, दो इसमें क्या है? पाए हैं। और ऑर्बिटल पिक्चर लीनियर है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, 180 degree bond angle. Regarding the orbital picture, it is just like the same. ठीक है, तो एक सिग्मा और ये दो पाई। Okay, so regarding the alkynes, how we are going to prepare them? What is the method of preparation? तो regarding the preparation कर लेते हैं बस इसकी, then do in the next class. Preparation में first है from the vicinal dihalide. From the vicinal dihalide. CH3CHBr अभी किया था हमने alkenes में भी इसको यूज, CH2Br। देखो बेटा इसमें ना 2 मोल ऑफ एल्कोहलिक KOH डाल दो और 2 बार HBr की रिमूवल कर दो। मैं एक ही स्टेप में दोनों करके दिखाऊंगी, अलग अलग कलर से कर देती हूँ। एक बार ये वाला H जाएगा और Br जाएगा और डबल बॉन्ड आएगा। दूसरी बार में ये वाला Br जाएगा, H जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इज दैट क्लियर? कैसे हुआ? HBr का एडिशन जैसे हमने किया था ना पहले, वो सेम मेथड में HBr का रिमूवल वो सेम मेथड से होगा, बट 2 स्टेप में होगा। एल्कोहलिक KOH रिमूव्स द HBr, बीटा डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, जिसमें सेट्जेफ रूल पढ़ा था। एंड सेकंड इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दैट इज द फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। रिगार्डिंग दिस मेथड कैल्शियम कार्बाइड CaCa2 हो गया। देखो कार्बाइड किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बाइड। देखो 3 4 5 5 ऑन ईच, तो नेगेटिव नेगेटिव, तो ये बन गया C2 2 नेगेटिव। और कैल्शियम क्या होता है? 2+2 नेगेटिव कट गया तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला हो गया CaC2। और 2 और साथ में हो गया आपका वाटर।
क्या बनेगा, एक तो प्रिपेयर होगा एसिटिलीन और एक आएगा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एसिटिलीन बाय दिस मेथड. बाकी यही इसके दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है एज वी हैव डन इन योर एल्कीन्स, बट द डिफरेंस इज वहां पे जो एक एक बार करते थे यहाँ दो दो बार करेंगे. बेसिकली यू कैन से कि वहां पे जो रिएक्शन हम करते थे एल्कीन का एल्केन में कन्वर्जन, यहाँ पे करेंगे एल्काइन का पहले एल्कीन में कन्वर्जन एंड आफ्टर दैट इज एल्कीन. चलो जी अब ले लेते हैं फटाफट कुछ पोल्स के क्वेश्चन आप लोगों के लिए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज try to give the answers fast if the poll appears on your screen. Only the 20 to 25 students are participating in the poll. Rest are sitting. स्क्रीन देख रहे हैं बस कि बाकी क्या आंसर कर रहे हैं. ओके सिर्फ 4 से 5 बच्चों का आंसर क्लास में ठीक है. कौन सा रिएक्शन है, कैन एनीबडी इन द क्लास टेल? Booth's reaction. वुड्स रिएक्शन है. तो वुड्स रिएक्शन में क्या होना था, 2 molecules of sodium और BrCH2CH3. ये रिएक्शन इतना आसान था, आपको NaBr निकालना था तो N ब्यूटेन फॉर्म होना था. मोस्ट ऑफ द क्लास ने आंसर लिखा है CH3CH3 इथेन. A is a correct answer. स्पीड से आंसर देना.
Done. Yes, ma'am. What is the answer of this question? Ma'am, A. Oh, I have not stopped the poll. Okay जी. लो जी, सेकेंड आंसर सब बच्चों ने दिया है, जबकि गलत है सेकेंड। फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था कि HCl की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगता। अगर आपके पास क्वेश्चन में HCl दिया है और पेरोक्साइड दिया, तब भी आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा के आओगे। तो A वॉज अ करेक्ट आंसर।